Live your dreams, achieve your goals. Your journey is your own and unique. So be brave enough to live the life according to your own vision. Let nothing stop you. It's your dream, your baby. Make it happen. Let's move on to our next episode, explore and go beyond. Hello everyone, how are you guys doing? I hope you're doing all fine. And if you're not doing fine, you will do, okay? Trust me. So we welcome you all to another episode of Aretas Club. Our guest for today is a radio personality who is currently working in 94.3 My FM. She's a dynamic, super energetic and a very humble person who believes in living her own dreams and never stops exploring in life. It gives me immense pleasure to introduce RJ Jia. We are extremely happy to have you on the show, ma'am. Now let's introduce ourselves. I'm Nandini. I'm Mahi. And I am Gorika. We are very excited to have you with us today, and we are looking forward to have an interesting conversation with you. Hi, to you beautiful faces, young faces. It feels really good to see you all. I'm safe. I'm good. How are you all? We are good too. We are good. So, ma'am, on Aretas Club, our first question to our guest is always their journey, because that's how we know how our guest is where they are today. So, I would like to know, what is your journey of being an RJ? See, I still have a journey. Journey is still on. But when I started, the initial years were quite difficult because my parents wanted me to see as a chartered accountant. Somewhere I was convinced with that dream because I saw a secured future or ghar walon ki khushi and all that. But later on I realized that I have a dream in journalism or this radio or media industry. So just for my graduation, I started my mass comm from Mumbai, and then I started liking it. So I started pursuing it, and yeah, I was a radio jockey in Udaipur. Then I am right now in Jaipur, from last 4 years. Ma'am, your first job was in Udaipur only, or did you work in Mumbai before working in Udaipur? No, actually, मेरी graduation का first year था. It was my first year. तभी I got a call from a radio channel from Udaipur. So they knew that I'm interested and I'm pursuing mass comm, and I've been to their office quite a few times. So मैंने अपनी graduation complete भी नहीं की थी. They called me and took my audition, and I was hired. I was 19 by that time, yeah. Oh. So I got a job. Right. Okay. How was your experience in Mumbai? Like when you had your college there, so what was the experience there? Yeah, difference, it always depends person to person. I was having a good life. I was living with my sister and my brother-in-law over there. A decent life जहाँ मुझे बहुत struggles नहीं करने पड़े थे. Struggles मतलब मेरे अलग तरीके के थे, but वो local train में धक्का खाने वाले struggles honestly नहीं थे. But अब मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आई वो लाइफ, बिकॉज मेरा जो होम टाउन है दैट इज उदयपुर. काम, पीस, स्लो लाइफ यहाँ पे है, एंड उतना करते हैं जितना हमें अपनी क्वालिटी टाइम के लिए वापस से वक्त मिल जाए, अपनी फैमिली के लिए वक्त मिल जाए. वहाँ इंसान को खुद के लिए वक्त नहीं मिलता था. सो वो सिर्फ कॉलेज लाइफ इतनी हेक्टिक थी. उसके बाद वहाँ काम करना, वहाँ और रुकना मुझे वैसे भी इतना समझ में आ नहीं रहा था. But I think now I am prepared to, move to a different city, a bigger city, because अब मैंने वो horizon अपने खुद के थोड़े बड़े कर लिए. वो बहुत young age में मुझे इतना fascinate नहीं कर पाया था मुझे. तो मतलब आपकी स्कूल लाइफ में आपकी हॉबीज क्या क्या थी? स्कूल लाइफ में हॉबीज, आई वाज इन स्पोर्ट्स. मैं नेशनल प्लेयर हूँ हैंडबॉल की. हैंडबॉल जो है वो बहुत सालों तक लगा कि मैं और खेलूंगी, बट इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. देन स्कूल की जो यूनियन होती है, मैं उसमें प्रेसिडेंट थी, तो मुझे लगा कि आई काइंड ऑफ लाइक बीइंग ऑन स्टेज एंड लीडिंग द टीम एंड talking to more and more people, having a different life from others.
जिनको डेली वही स्कूल आना घर जाना की जगह दूसरे 4 टास्क मिलते हैं दिन भर में. तो मुझे लगा था कि मैं रूटीन जॉब्स 9 to 5 जॉब के लिए तो नहीं बनी हूँ. सो या देन धीरे धीरे रेडियो की तरफ इंटरेस्ट मेरा बना. स्कूल लाइफ से कोई स्टेज फियर, ऐसा एक्सट्रीम स्टेज फियर नहीं था आपको? आप इंटरेस्टेड थे? अगर मुझे कोई डांस करने के लिए अगर कोई कह दे हाँ आज भी, अच्छा, ओके, हाँ, फियर है. बट यू नो स्टैंडिंग देयर टॉकिंग अबाउट समथिंग वो कभी नहीं रहा. बट डांसिंग मेरा फोटे है नहीं आज भी. समवन प्लीज के आ जाओ डांस करते हैं, आई एम लाइक नो डू, आई एम चिल ओवर. मैम एज आपका जॉब लोगों से इंटरेक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है, तो क्या मैं ये अज्यूम करूँ कि आप अपने रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो? क्या आप एक एक्सट्रोवर्ट हो? नहीं, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट. लाइक माय मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू माय प्रोफेशन आई हैव टू बी वन, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि आई एम सराउंडेड बाय few clients or few administrative people and I'm not asking them questions or interacting with them. So ये मेरा profession है कि मुझे वो push करता है go and talk to people. But as far as my personal life is concerned, I hardly go out or meet new people. Professional जब तक terms होते हैं तब तक I go and meet people. Otherwise वो limited दोस्तों में रहने वाली एक सीधी सादी शांत लड़की. मैम शांत तो हम नहीं बिलीव कर सकते, पर ठीक है. हाँ मैम, मैं जैसे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो ये मैंने मिथ सुना है कि जो लोग बहुत बोलते हैं ना, उन्हें ऐसे वीजेइंग और आरजेइंग में जाना चाहिए. तो आपको लगता है कि ये मिथ ट्रू है कि बस बहुत बोलते हो तो यू कैन गो एंड कॉन्कर दिस वर्ल्ड? सी ये मिथ तो ट्रू है, लोगों के दिमाग में है क्योंकि, बट ये गलत है. सी क्या होता है कि मुझे भी जैसे मेरे बहुत से रिलेटिव्स को, मम्मी पापा के दोस्तों को पता लगा कि ये आरजे बन गई है, तो उनके बच्चों के लिए या किसी और भी ऐसे छोटे ये भी बहुत बोलता है हमारे सोनू, इसको भी ले जाओ तुम्हारे यहाँ बना दो. लाइक ओके, मतलब आरजिंग इज नॉट अबाउट बोलना. बहुत बोलती है और पूरे दिन बोलती रहती है, बोलता रहता है. ये मिथ है, पर बहुत से लोगों के दिमाग में ये मिथ है. और मैं कहूंगी कि वो लोग कभी एक दिन हमारे ऑफिस में गुजारें, हमारी वर्किंग कैसी होती है ये बात समझें, देखें, और उसके बाद अपने बच्चों को इस तरफ पुश करें कि तू भी बन जा, बोलना ही तो है. So it's totally different. I think मतलब बहुत आप लोग को अप टू डेट रहना पड़ता है, एंटरटेनिंग रहना पड़ता है, और मतलब when even you're having bad days, you cannot put it out there. You have to be in other set of mind. So मेरे हिसाब से it is a myth only. हाँ, मैं क्वेश्चन समझ गई. आई थिंक यू आस्किंग कि एकदम से मूड जो खराब होता है उसके अंदर भी आप इतना चर्पी, इतना बबली कैसे रह सकती लोगों के साथ. सो व्हाट हैपेंस कि अगर आप पैशनेट हो अपने प्रोफेशन को लेके, अपने जो भी काम आप करते हो उसको लेके, तो आपकी पर्सनल लाइफ हार्डली कभी आपके काम को, आपका मूड कभी हार्डली आपके काम को हैम्पर करेगा. इफ यू आर ट्रूली पैशनेट कि हर दिन आप जब वहां पहुंचते हो आप बाकी दुनिया को भूल जाते हो. अगर आप इस तरह के किसी प्रोफेशन में हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर एट द राइट प्लेस. तो मैं कितने भी खराब मूड में हूँ, मैं वंस आई एंटर द स्टूडियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल ऑफिस प्रीमाइसेस, बट वंस आई एंटर द स्टूडियो, जहाँ पे मैं अपनी चेयर पे जाके बैठती हूँ, एंड आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एल्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. नंदिनी, यू मेंशन्ड दिस पॉइंट कि हमेशा एंटरटेनिंग बातें करने वाला, और सी अपडेटेड तो रहना होता है, हर इंसान को रहना चाहिए, आई पर्सनली बिलीव. But as far as this entertainment point is concerned, nowadays entertainment क्या definition मानते हो आप लोग? Like being this generation, what is millennials हैं आप सभी, तो आपके लिए entertainment की definition क्या है? According to me, entertaining होगा कोई जिससे मैं relate कर सकती हूँ as a person. अगर कोई specific topic के बारे में, कोई topic जो मेरे लिए interesting है, वो मेरे लिए entertaining होगा. Right. I think. हाँ. So mostly people relate laughter with entertainment, right? So entertainment is not only about laughter. There are other emotions also जिन्हें आपको engage करना होता है. Engaging any listener with your content जो आप बोल रहे हो, deliver कर रहे हो, that is entertainment, right? तो ये एक अच्छी चीज है कि आप लोगों में वो myth है नहीं कि हंसाते हैं और हमेशा हंसना ही entertainment. Ma'am, I actually wanted to ask you that can you tell me one thing you like about your job?
and one thing you don't like about your job. Okay, so starting with the second one, I don't like about my job is staying away from family, because जो अपॉर्चुनिटीज मुझे बड़े शहर दे सकते हैं या दे रहे हैं, वो मुझे उदयपुर में एक टाइम के बाद मिलनी बंद हो गई. So I don't like this part about the job, and like करने वाले तो बहुत से points हैं यार, इसलिए मैं वहाँ पे survive कर रही हूँ, रह रही हूँ इतने सालों से अपनी इच्छा से. Most favorite point is हर दिन नया है, मतलब monotonous life नहीं है. So that is something interesting. So मैम like लॉकडाउन का इम्पैक्ट काफी सेक्टर्स पे पड़ा है, एंड आई गेस रेडियो सेक्टर पे भी कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा ही होगा. क्योंकि मैम ज्यादातर लोग रेडियो सुनना पसंद करते थे जब वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, या ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, तो अब व्हीकल्स नहीं यूज कर रहा है कोई भी, तो उसको कैसे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ओके, सो जब पैंडेमिक इंडिया तक पहुंचा था, फर्स्ट लॉकडाउन हमने सुना था कि लॉकडाउन हो चुका है, सो रेडियो के लिसनरशिप से ज्यादा रेडियो के बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था. जो क्लाइंट्स थे वो पीछे हटने लगे थे कि यार रेडियो, जो आपने बात कही गौरका की रेडियो तो लोग वाइल ट्रैवलिंग कम्यूट करते हुए सुनते हैं, अभी सुन कौन रहा है जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें. तो उन्होंने अपना पैसा बाहर निकालना शुरू किया. इससे रेडियो को बहुत लॉस हो रहा था. बट इन अ फ्यू मंथ्स ऐसे बहुत से रिसर्च, बहुत से रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें रेडियो की लिसनरशिप, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माय एफएम, आई एम टॉकिंग अबाउट होल रेडियो इंडस्ट्री, 33% से ग्रो किया था इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ लॉकडाउन. Okay, so people are finding different ways of entertainment, whether it was OTT for some people, social media for some people, gaming for some people, so radio for some people. And जब ये रिसर्च आई और अलग अलग एजेंसीज की तरफ से आई, बहुत सी एजेंसीज ने इसे कंफर्म किया, और जब ये क्लाइंट्स में वापस से स्प्रेड हुई तो रेडियो ने वापस से एक अच्छा दौर देखना जो है वो शुरू किया. एंड टचवुड इस बार जो ये लॉकडाउन वाला सीन वापस से आया है, अब तक हमें वो चैलेंजेस जो लास्ट ईयर फेस करने पड़े थे नहीं करने पड़े. Okay, that's good मैम. एंड लाइक मेरे को एक और चीज पूछनी थी कि जैसे आपका, जब आप होस्ट करते थे कोई शो, जैसे आपका कोई भी शो है वो आप होस्ट करते थे, तो आपका एक पर्टिकुलर एक स्टूडियो बना हुआ था जहाँ पे आप जाते थे, अपना शो होस्ट करते थे अपने कंफर्ट में, आपको वहाँ पे सब कुछ आपको मतलब करने में मजा भी आता था. बट लाइक अब आप सब कुछ घर से कर रहे हो, आपके इक्विपमेंट्स वगैरह, आपका माइक, तो वो कैसे, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? मुझे पर्सनली शौक था ऐसा कि मैं अपना एक खुद का स्टूडियो क्रिएट करूं. So I was saving little by little money and investing in these equipments. तो मैंने एक छोटा सा सेटअप अपने खुद के घर में कर लिया है. But yeah, I know many of my colleagues जो कि कबर्ड के अंदर बैठ के तकियों का घर बना के उसके अंदर से अपना जो शो है वो करते हैं ताकि नॉइज जो है किसी और चीज की ना आए. Oh, that is so creative. I was thinking कि तकियों की क्या जरूरत है. Wow. Because नॉइज कैंसलेशन का काम करते हैं, तो बचपन में बच्चे नहीं खेलना करते थे कि तकिए घर बनाते थे. बहुत से रेडियो जॉकीज हैं जो अभी इसी तरह से काम कर रहे हैं. जैसे हम लोग ने ना देखा आपके इंस्टाग्राम पेज पे और सब जगह कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिले हो, दीपिका पादुकोण, आशा भोसले और इन सब से, तो आपका ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई सेलिब्रिटी था जिसके साथ एक मतलब अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था कोई? यार ऐसे तो हाँ बहुत से रहे हैं. आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा. लाइक आई थिंक मैं आपकी एज में थी, उससे भी छोटी होंगी. मेरे घर में कबर्ड पे मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए थे ऑफ प्रियंका चोपड़ा. आजकल के बच्चे तो नहीं करते, बट या व्हेन आई वाज ऑफ योर एज और यंगर देन यू, मैंने वो पोस्टर लगाए हुए थे. एंड आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड दैट एक दिन मैं जरूर मिलूंगी. मतलब हाँ, तो वो मैंने कभी स्टेज फियर फील नहीं किया था. मैं नर्वस इस तरह से फील नहीं होती थी कि मैं बात ना कर पाऊं, अपना काम जो है वो परफॉर्म ना कर पाऊं. बट देन द डे व्हेन आई सॉ हर, मतलब एक वो रियल फैन मोमेंट जो होता है ना, वो मैंने महसूस किया. एंड शी वाज सो वार्म, शी केम एंड शी हग्ड मी. तो बस वही मोमेंट था जब मुझे लगा कि यार अच्छा रहा क्या. नहीं मैम, अभी भी पोस्टर्स लगाते हैं सब लोग. ये रिलेटेबल है स्टफ सबके लिए. अच्छा, पर अभी जंकुक टाइप के लोगों के लगने लग गए ना यार प्रियंका चोपड़ा और इनकी फॉर्मूला. अभी मेरी एक
ख्वाहिश है रणबीर कपूर से मिलने की। मैम मेरी भी। कई सालों से मैं सुन रही हूँ ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी। नहीं, मैंने कल भी सोचा हुआ है कि उसकी शादी के पहले वो अगर आ जाता है तो मैं ऐसे चूड़ा वगैरह पहन के शादी का जोड़ा पहन के उसके होटल में जाके बैठी होगी कि एक बार आके मिल लो। बट वो ड्रामा मैं कर नहीं पाई क्योंकि ब्रह्मास्त्र रिलीज हो नहीं पाई। हाँ मैम, वो बहुत डिले कर रहे हैं वो कब से। मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ उस मूवी का। मैम जब जैसे आपको स्टेज फियर नहीं है, ओके, वो हमने वो सुन लिया है, तो आपको जो नर्वसनेस होती है किसी स्टूडियो में जाने से पहले या फिर किसी होस्ट करने से पहले, तो आपको वो क्यों होती है? मतलब आपके लिए वो क्या ट्रिगर करता है नर्वसनेस? क्या वो चीज होगी जो ट्रिगर करेगी नर्वसनेस? It's with every human being, I guess. ये human psychology कहती है कि a person is always feared of judgment. कि जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और आपने मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनाया क्या नहीं, although sometimes it matters, sometimes it doesn't matter, but ज्यादातर वक्त पे जो लोगों को नर्वसनेस होती है वो शायद इसी वजह से होती है कि उनके अंदर ही अंदर कहीं ये चल रहा होता है कि यार अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हुई तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। बस यही है कि when you have the mic, you are the राजा और you are the रानी. Feel like that and the world will listen to you. ओके मैम, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि आपने बताया कि आप उदयपुर में फर्स्ट जॉब कर रहे थे अपनी, तो आपने अपना जॉब और अपना ग्रेजुएशन साइमल्टेनियसली मैनेज किया? Yes. तो आपको उसमें क्या डिफिकल्टी आई? डिफिकल्टी तो इतनी नहीं आई बिकॉज मेरे कंपनी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मुझे वेकेशंस की जरूरत थी। सो उन्होंने मुझे आई थिंक कुछ 70 डेज की लीव्स दी थी दोनों साल में। एंड सो मैंने पढ़ाई भी अच्छे से कर ली, एग्जाम्स भी अच्छे से दे दिए। मैम आपका जो आप उस टाइम पे मतलब सेगमेंट क्या कर रहे थे उस टाइम पे? कोई ज्यादा आवर्स ऑफ वर्क था आपका? क्या था फर्स्ट पोस्ट आपका? Radio jockey. I joined as a radio jockey. I was hosting evening drive time show, Happy Evening, 5 to 9 with my friend. Oh, that's nice. When I was in 10th standard, I did a summer internship with the radio channel Big FM. तो इसीलिए I had contacts. Yeah. तो वो summer internship से मेरे कई सारे contacts बन गए थे. I knew people in the industry. They knew me. ऐसा. Okay. Both my parents were working. तो उनके पास they hardly had time for us. मतलब summer vacations में तो उनके लिए difficult हो जाता था कि आप पूरे दिन दोनों sisters जो हैं वो घर पे लड़ाई करेंगी और दादा दादी की complaint शाम को हमें मिलेंगी। तो वो उनका aim यही होता था छुट्टी लगने वाली है, मतलब इनके कोई ना कोई hobby classes join करवा दो। तो swimming, skating, painting, calligraphy सब खत्म होने के बाद अब क्या करवाएं? Then I came up with a suggestion कि मुझे ये RJing वाला चल रहा है समर प्रोग्राम, ये ज्वाइन करना है। They were like, हाँ go ahead. Okay. इस तरह से। मैं मतलब आपके एज में मतलब मैं तो 10th में इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं। आई थिंक मेजरली मतलब मैं आपसे कंपेयर करूँ तो मैं तो कॉन्फिडेंस की बात करूँ, मैं तो सोचा भी नहीं चाहता था कि वो स्टेज पे जाके बात करते हैं। अब जैसे मतलब अभी मैं 10th में मतलब इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ है, मतलब आई एम ट्राइंग। बट पहले क्या होता था मतलब से स्विमिंग, मतलब मैं स्विमिंग में अच्छी थी तो हम लोग के स्कूल में कॉम्पिटिशंस होते थे। बट देन आई डोंट नो उस टाइम क्या हुआ था, तो मेरे में हिम्मत नहीं हुई थी मैं सबके सामने स्विमिंग करूँ, इवन दो मेरे को पता था मैं अच्छी हूँ और ये वो। और डिबेटिंग में भी मेरे साथ यही होता था, मैं ऑडियंस के सामने नहीं बोल पाती थी, इवन दो मतलब मेरी स्पीचिंग स्किल्स थोड़ी सही है, पर पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो ऐसे मतलब आप कुछ टिप्स या कुछ दे दो। टिप्स तो क्या है, मैंने जो चीज सीखी है ना, मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस कम्स विद नॉलेज। अगर आपको नॉलेज एज इन आपको जो बात कहनी है ना, वो अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये बात बोलनी है, चाहे आपको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करना है तो आपको बीजेपी के प्लस माइनस पता होने चाहिए, और अगर आपको स्पोर्ट्स वर्सेस बॉलीवुड करना है, धोनी वर्सेस विराट करना है, इन सारी चीजों में ये बातें तब इंसान कर सकता है जब उसे उस बारे में चीजें पता हो। कि अगर मुझे पूरे करियर की हर एक लेवल की धोनी की स्टेटस पता है तो मैं कहीं किसी भी स्टेज पे खड़े होकर उस बारे में बात कर सकती हूँ। आई एम नॉट फील कि लोग मुझे देख रहे हैं क्या सोचेंगे। बस नॉलेज जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। सेकेंडली हमें कहीं ना कहीं
थोड़ा सा एक आई कांटेक्ट कैसे करना है लोगों से, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ताकि हम नर्वस ना दिखे, अपना थोड़ा वोकैबुलरी पे और काम करें कि वही होता है ना, हम लोग अक्सर तो क्या है, हाँ तो, अच्छा, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो अवॉइड करनी चाहिए एट सच ऑन सच प्लेटफॉर्म्स। तो अगर ये इंसान बेसिक्स थोड़ा सा ध्यान रख लेना इनिशियल इयर्स में, उसकी पूरी लाइफ बहुत सॉर्टेड निकलती है। और वैसे भी अभी जो सिनेरियो है, जब तक आप प्रोफेशनल्स बनोगे तब तक यही है कि हम अपने सर्टिफिकेट्स डिग्रीज तो सबके पास होंगी, ड्राइंग रूम में पेरेंट्स लगा भी देंगे, और जॉब जो है वो स्किल से ही मिलेगी। तो अपने किसी न किसी स्किल को पॉलिश करते रहो अभी से। आपका फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल ही एकदम ऐसे हिट किया कि आई एग्री टू दैट। नॉलेज से आ जाता है कॉन्फिडेंस, ट्रू, हाँ, मतलब वो फील होने लगता है, वो अच्छा लगता है। और प्रैक्टिस के साथ साथ ना, व्हेन यू स्टार्ट, मतलब डोंट, अगर एक बार डर लगता है ना, तो उस डर की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को लूज मत करो कि आज मेरे पास एक मौका है जहां मैं इस इतने ऑडियंस को फेस कर सकती हूँ, इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकती हूँ। बट यू नो, जस्ट एक फियर आ गया दिमाग में या कुछ ऐसा आ गया कि नहीं यार अभी नहीं, बाद में, आई विल सी नेक्स्ट टाइम। बस वो एक एक करके जो मौके छोड़ते हैं ना, वो एक एक करके अगर मौका बनाएंगे तो आगे ऐसे कभी लगेगा ही नहीं। बस वो मोमेंट के लिए अगर फियर कम हो जाए तो बस वो मोमेंट ही विक्ट्री है, मान लो। हाँ, एग्री। मैम, मुझे आपसे पूछना था कि अब जब आप सब कुछ, मतलब आप कंफर्टेबल हो बिल्कुल आरजेइंग में और आप काफी इयर्स से कर रहे हो, तो आपको लगता है क्या कोई कि आपके टीनेज सेल्फ में, जब आपने स्टार्ट किया था और अब एडल्ट सेल्फ में, कुछ पर्सनालिटी वाइज चेंजेस आए आप में? आपको ऐसा लगता है? हाँ, बहुत चेंजेस आए। मतलब टीनेज में हर किसी को टेम्परामेंट इश्यूज होते हैं। टीनेज में हर इंसान बहुत डिफेंसिव होता है कि अगर पेरेंट्स ने ये पूछ लिया कि तुमने अपना बेड क्यों नहीं बनाया है, तुमने अपनी कबर्ड क्यों नहीं सेट की है, तो उसके पास हमेशा 100 बहाने तैयार होते हैं, 100 आर्गुमेंट्स तैयार होते हैं। बट व्हेन यू, आई डोंट थिंक सो कि आप जब आरजे बनो तब, आई थिंक आप किसी भी प्रोफेशन में जब एंटर करते हो तो इट चेंजेस योर पर्सनालिटी, इट यू नो चेंजेस योर ऑरा। आपका बात करने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका, आप द वे यू, जब आपके पापा मम्मी पॉकेट मनी दे रहे होते हैं और वो खत्म भी हो जाती है तो आपको पता होता है कि हाँ तो वापस मांग लेंगे, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी। बट व्हेन यू हैव अ सैलरी, आपको उसी में तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, देखो मांगना, घर वाले तो तब भी दे ही देंगे, बट देन यू हैव दैट इंडिपेंडेंस अंदर से आती हुई कि अब नहीं जी नहीं, हम अपना ही पैसा खर्च करेंगे। तो वो धीरे धीरे करके यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, यू बिकम मोर काम। हाँ, चेंजेस तो हैं। मैम, अगर आप आरजे नहीं होते तो आपको क्या लगता है, आप क्या फील्ड चूज करते अपने लिए? तो मैं बिजनेस कर रही होती अपने पापा के साथ। मैं जॉब नहीं करती। आई डोंट नो हाउ, आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माय एंटायर फैमिली जिसने जॉब किया है। मतलब ऐसा दूर तक कोई कल्चर नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में, फिर भी दादा की जनरेशन में कुछ लोग रहे होंगे, बट ऐसे प्राइवेट जॉब में फैमिली में से किसी का जाना इज वेरी रेयर। और अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं फॉर श्योर अभी कुछ ना कुछ यहीं पे रहकर पापा के साथ करी होती। हम आपको कभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस मिले क्या घर वालों से, क्योंकि यू आर गोइंग आउट ऑफ द फैमिली बिजनेस? आपको कभी एक्सप्लेन करना पड़ा अपने आप को कि मुझे यही पाथ चूज करना है? हाँ, करना पड़ा, बहुत करना पड़ा। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि वो लोग टोटली अगेंस्ट थे कि चलो उदयपुर में कर रही थी तब तक समझ में भी आ रहा था, अब तुम्हें जयपुर क्यों जाना है। मतलब मुंबई पढ़ाई के लिए एक बार में भेज दिया था क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि 3 साल में तो लौट आएगी, हद से हद 5 साल में लौट आएगी। बट एक बार जॉब के लिए बच्चा निकल जाता है ना, फिर ऐसा होता नहीं कि वो लौट आए। तो घर वालों का एक होता है ना, टिपिकल इंडियन पेरेंट्स का, कि वैसे भी शादी के बाद अपने घर में तो रहना है, कुछ साल हमारे साथ रह लो। माय सिस्टर इज ऑलरेडी मैरिड, तो मेरे पे ये सारा प्योर प्रेशर था। बट आई वांटेड टू गो एंड आई ट्राइड टू कन्विंस देम कि बिजनेस वापस आना, ये सब चीजें हो जाएगी, बट आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि मैं अकेले रहूंगी, इंडिपेंडेंट लाइफ में कैसे रहूंगी। देन दे अग्रीड एंड 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके निकली थी घर से, 4 साल हो गए।
Win win. They're not listening. हम बहुत ही अच्छे टिप्स हैं. मैं बिल्कुल कन्विंस करने की कोशिश करूंगी अपने पेरेंट्स को. हाँ, नहीं यार, कन्विंस करो. मतलब मेरा ये मानना है कि डोंट ड्रॉप योर ड्रीम्स और लूज योर होप्स. सी, उनके सपने उनके हैं, पर अगर आप अपने सपने को लेकर कन्विक्शन से सोचते हो दैट दिस इज द ड्रीम जो मुझे करना ही करना है अचीव लाइफ में, और दिस इज अ गोल जो मुझे इतने सालों में अचीव करना ही है, देन यू शुड गो फॉर इट. Yes ma'am. For trying to follow the dreams. राइट. काफी टाइम से लॉकडाउन में तो था, इट वाज वेरी होपलेस. मतलब ऐसे ऑलमोस्ट सोच लिया था कि अभी मैं तो सोच रही था दुनिया खत्म होने वाली है थोड़े टाइम में. मैं कहा ये ना, दिस इज हाउ यू सी द थिंग्स. अगर आपने तो खैर बहुत अच्छे तरीके से लिया दैट यू आर एक्सप्लोरिंग दिस पॉडकास्ट एंड इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, सो यू आर स्टिल यूटिलाइजिंग इट. बट आई थिंक लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जहाँ लोग, नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइज बट पीपल लाइक अस, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो डेली जो चीज साइकिल चल रही है, घर जाना, जॉब पे जाना, वापस आना, उनको एक बहुत अच्छा लाइफ को समझने का, रुकने का मौका मिल गया. I call it unboxing. Yeah. Oh, nice. तो मैम फिर Very nice. हाँ, term for it. हाँ, Phrase. मतलब वो बहुत से समझ में आता है. But I think फिर हाँ, मतलब हर section of people के लिए अलग-अलग वो हुए हैं. अलग-अलग हैं. For some it is a vacation, for some it is a big worst nightmare. मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन है, और आप हमेशा इंटरव्यू करते हो लोगों को, एंड इस बार आपको हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो कैसी फीलिंग है आपको? कैसा फील हो रहा है? यार पता है कैसा फील हो रहा है? मुझे इंटरव्यू वाली तो फीलिंग आई नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बहुत ही यंग लड़कियों से बात कर रही हूँ जिनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, एंड दे आर वेरी एक्टिव इन देयर लाइव्स एंड देयर पर्सपेक्टिव्स. और मुझे एक तरह से मेरे लिए ये था कि कल मेरे को यंगिस्तान में बात करने के लिए 4 नए पॉइंट्स मिल गए, तो मैं इसे उस हिसाब से ले रही थी कि चलो तुम्हारे क्या सोचने का तरीका है, तुम लोग क्या जानना और समझना चाहते हो, तो मैं वो बात और आगे कर सकती हूँ. ऐसा. थैंक यू मैम. मैम और एक लास्ट क्वेश्चन कि आप क्या एडवाइस दोगे यूथ को? नहीं यार, देख, एडवाइस का क्या ना, पर्सनली बताऊं तो मतलब मैं तुम तीनों को भी एक एडवाइस नहीं दे सकती, बिकॉज तीनों का लाइफ गोल्स, सोचने का तरीका, चैलेंजेस सब अलग अलग हैं. सो मैं तो ये कहूंगी कि एडवाइसेस से बचो, और जो करना चाहते हो खुद एक्सप्लोर करो, और उसके बाद उस चीज को लेकर आगे बढ़ो. क्योंकि एडवाइस तो इंसान ना बहुत ऊपर से, दूर से देख के दे देता है, बट वो हमारी लाइफ में हमें पर्सनली कितना कनेक्ट कर पाती है कि हम लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं. सो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को देखना बंद करो यार. हर कोई बना बैठा है. मैम बिल्कुल लास्ट में प्रॉमिस. मैं कहती मैंने आपकी वॉइस बिल्कुल ऐसे रिदमिक, व्हेन यू आर ऑन रेडियो तो एकदम ऐसे रिदमिक होती है कि हाय आई एम आरजे जी ऐसे करके ना. मुझे आप अगर साइन ऑफ करोगे ना, तो आप वैसे आप मुझे वो हमें सुना सकते हो क्या? अपना कोई साइनिंग ऑफ अगर स्पेसिफिक है. साइनिंग ऑफ वैसे तो मैंने उसी टोन में ही बोला अभी कि किसी की एडवाइस सुनो मत, और जो अपने ड्रीम्स हैं उन्हें फॉलो करो. ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहो, और मिलते हैं. See you on the other side. Thank you so much. Bye bye. It was a pleasure to have you. Same here, guys. Thank you so much. Bye bye. Bye. Thank you so much, ma'am, for sharing all these experiences with us. We are glad that you took out time to have this conversation. It was really fun for us, and I hope it was fun for you too. And thank you all for listening to this one. So let's keep chasing those dreams, yeah? Our Instagram handle is @oratorsclub_. See you all in the next episode. Until then, stay safe, stay home. Bye bye.